اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. لکھا ہے ہارون الرشید اپنے پلنگ پہ نا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا اور غیب سے آواز کیا آتی ہے، ہارون تو سویا پڑا ہے، ہمارا ایک بندہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، جا کے اس کو رہا کروا. ہارون اٹھا اور بھاگا، دیکھتا کیا ہے کہ بندہ ہے سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے، یا اللہ حمایتی بھی کوئی نہیں، یا اللہ سفارشی بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرا ضامن بھی کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو ہے. ہارون نے جناب دروازہ کھلوایا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو جانے نہیں دیا، کہا آج تو رات میرے پاس ہو. اور لکھا ہے صبح ہارون نے اعلان کروایا بغداد میں، آپ نے فرمایا جس بندے نے اس بندے کو دیکھنا ہو جس کا ضامن اللہ ہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو نا کہ جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے تو اس شخص کو آ کے دیکھ سکتا ہے. لیکن بس اتر ہی ہوتے پھر فیصلہ کر دیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سارے بوئے کھڑکانے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں کھڑکاندے ہیں، سب جگہ جانے ہیں، پتہ نہیں ہوتے کل کیوں نہیں آتے ہیں. آ جاؤ یار، کھڑکاؤ دروازہ، وہ سنتا ہے، وہ سن رہا ہے اور وہ سنے گا. تو جب پکارے گا وہ سنے گا، تو پکارتا نہیں. یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اچھا سائیں انہوں نے موضوع بدل چھڑے سارا. اللہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، پھر کیمرہ لگا ہوتا ہے میں تھوڑی سی احتیاط کر جاتا ہوں. حضرت امام حسن بصری نا آپ درس دے رہے تھے، آپ لوگوں کی تربیت قربان جاؤں جی ان کے درس پہ بھی. اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں. وہ سودے نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. ہم تو سودے بیچ رہے ہیں، سرما بیچن رہے ہیں، پھکیاں بیچن رہے ہیں، ڈنٹونک بیچن رہے ہیں. حضور کی امت دھکے کھا رہی ہیں، ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ. وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. بڑے لوگ تھے. تو آپ نا نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں. وہ آپ بیان فرما رہے تھے لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے. کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے، کوئی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا. کھولتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی، تو رب ہے، دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے، تو بارش برسا. بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ ہے، اپنی بارش آئے گی، بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی. دیکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے، صوفیوں کا لباس. اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا. اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے مجھے پتہ ہے رب تو ہی ہے، میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا. اب جو بھی ہے میں آ گیا اور مجھے خالی نہ لوٹانا. لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی. فرعون، حضرت فرعون وہ اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا کریم ہے. تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت ہی بیٹھے، تمہارے پاس تو حضرت ٹیگ ہی بہت بڑا ہے. ہاں تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، محمد الرسول اللہ. تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے. جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے، تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے. تسی ہونا دے کنتم خیر امت اخرجت للناس. وہ تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، قدر ہی نہیں اپنی کی ہے. ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی ہے.
इसीलिए तो इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी। क्या कर रहा है देख अपने आप को, तू मोहम्मदी है मोहम्मदी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं या अल्लाह देखना है, फरमाया मेरे कलीम तू नहीं देख सकता। और एक मोहम्मदी का दावा सुनो, वो क्या कहते हैं, यार को हमने जा बजा देखा है, यार को हमने जा बजा देखा, तू नहीं देख सकता। लेकिन मोहम्मदियों के दावे सुनो, कहते हैं यार को हमने जा बजा देखा, कह रहे नहीं देख सकते। मोहम्मदी का दावा सुनो, हुजूर बुल्ले शाह फरमाते घूंघट चक लै सजना वे हुन शर्मा कानू रखियां वे। तुम अपनी कदर खुद ही नहीं की, हमने सबसे ज्यादा अपनी बेकदरी खुद ही नहीं की है। समझ ही नहीं सके, पहचान ही नहीं सके कि हम हैं क्या, हम हैं क्या हजरत जी। तो वो आपने फरमाया दस्तक देते लो दरवाजा खोल दे। लिखा जा रही पर्दा था, वो बीबियां भी बैठी थी, उनमें से कम्मा जी उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी हारून हसन आपने तो आज नई बात ही सुना दी। आपने फरमाया क्यों, मैंने क्या कहा? तो हमारी आगे से कहती है हसन आप कह रहे हैं कि अल्लाह के दरे रहमत पे दस्तक देते रहो, एक वक्त आएगा वो अपनी रहमत का दरवाजा तुम पे खोल देगा। तो हसन ये तो मुझे बताओ उसने दरवाजा बंद कब किया है? ये तो बताओ उसने बंद कब किया है, उसने बंद कब किया है? कोई टाइमिंग है कि असर वेले सुनांगे, असर के बाद नहीं सुनांगे? कोई टाइमिंग है कि इशा के बाद कोई ना मुझे पुकारना, मैं नहीं इशा के बाद सुनता है, रात 1 बजे के बाद ना मुझे पुकारना, मैं नहीं सुन। देखा कहीं फरमाया नहीं, जड़े वाले मर्जी पुकार, कार पुकार, मस्जिद च पुकार, मिजार ते पुकार, गार च पुकार, सहरा च पुकार, मोटरसाइकिल ते पुकार, कार ते पुकार, जहाज ते बह के पुकार है, पहाड़ ते चढ़ के पुकार, जमीन दी 8वीं 7वीं तह च वड़ के पुकार, मैं सुनूंगा तेरी पुकार को। पुकारते कोई नहीं, कोई सूद ले रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई दाल में पत्थर मिला रहा है, कोई गधे मार के बेच रहा है, कोई कुत्ते मार मार के लोगों को बेच रहा है, उसको नहीं पुकारता कोई भी। ये सर्दियां थी हजरत, ये दरख्त क्योंकि मेरी नजर पड़ती रहती है ना, ये जो बेल या बाहर अंगूर की बेल देख रहे हैं, मैं इसको देखता रहा हूँ सर्दियों में, बिल्कुल खाली थी। क्या इसने सूद लिया तो पत्ते आए हैं? क्या इसने सूद लिया तो पत्ते आए हैं? क्या इस बेल ने रिश्वत ली है फिर इसमें पत्ते आए हैं? चलिया जे और रब बगैर सूद ते रिश्वत तो पत्ते दे सकता ते तेनू नहीं दे सकता है? इसीलिए तो अल्लाह कहते अल्लाह या ये फालसों का सीजन है। क्या फालसों ने 2 नंबरी की है? फालसों के दरख्त ने फिर फालसे आए हैं। क्या जामुन के दरख्त ने हेरा फेरी की है फिर जामुन पड़ेंगे? क्या आम के दरख्त 2 नंबरी कर रहे हैं फिर आम पड़ेंगे? अगर उनको पत्ते दे सकता है बगैर हेरा फेरी की, अगर वो इनको 2 नंबरी की है बगैर शहतूत दे सकता है, वो बंदिया तू भी थोड़ा सा खलो तो सही, तुझे भी सारा कुछ ही दे सकता है। लेकिन मैं एक दिन ना जनाब के नाल सा, वो अदर जी देखो हुस्न असल में ना बंदे के अंदर होता है, हमारे अंदर ही हुस्न नहीं है, हमारे अंदर अंधेरा है, गंदगी है, गलाजत है। इसी तरह मियाँ साहब कहते भी ना, बारों बारी फेर ना कुड़िए ऊंज अंदर दा कूड़ा, भाई अंदर साफ करते सारा कुछ ही सोना लगेगा। वो हजरत जी शहतूत का दरख्त था तो पता कोई नहीं था सर्दियों में, तो जाहिर टानी ना ये टानी की शेप थी इस तरह, जाहिर पता कोई नहीं था। तो इस तरह ना मुर्शद फरमाने लगे आफा जी देखो हैं ऐ नहीं लगता पाया कि दरख्त इंज करके कहने नहीं या अल्लाह फिर पत्ते दे दे है। इसी तरह शेप थी हजरत, ऐसे टहनियां खाली थी ना हजरत जी। चलो क्योंकि मेरे इधर तो नहीं ना कुछ भी, 5 उंगलियां रखता हूँ, ये जगह खाली है, लेकिन दरख्तों के ज़ाहिर पूरी इस तरह शेप बनी थी हजरत, शहतूत के दरख्त की ना, क्योंकि पता कोई नहीं था, टानियों की ये शेप थी हजरत। तो मुझे पीरो मुर्शद फरमाने लगे कि बिला डॉक्टर साहब फरमान लगे मौली जी देखो है नहीं लगन दिया टहनियां इंज करके ना तरले पान डई ने या अल्लाह सानू फिर पत्ते दे दे। गल गल तरले पाए बन्नी पुत्र रोया करो अपने अल्लाह की रोया करो। ये ईद वाले दिन ना जी 1200 रुपए किलो लीमू बिके हैं, 1200 रुपए किलो लीमू बिके हैं, मैंने खुद 250 रुपए पाव ली है। ये क्यों है? ये सब बेयकीनी की वजह से है, बेयकीनी। तो समझ आती है 1000 रुपए किलो लीमू या 1200 रुपए किलो लीमू। हालांकि वो जो 1200 रुपए किलो लीमू बेच रहा था भावें उन्हें भी कुछ 4-5 उम्र कीते होने। हाँ इस तरह ही होता है।
सिर्फ बेटा ये सीखना और सिखाना है कि वो जो 1200 रुपये मैंने गलत तरीके से लिए ना, थोड़ा सा मैं अपने अल्लाह पे यकीन रखता तो मैं सही तरीके से भी ले सकता था। वो 1200 जिसे मैंने लीमू लिए ना, उसके नसीबों में लिखा जा चुका था, वो 1200 उसका था, लेकिन एक इख्तियार अल्लाह ने उसको भी दे रखा था। बंदे तेरा इख्तियार है, जिमें मर्जी ले, बस थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा कि पुत्र इस तरह नहीं, सीधे तरीके ना लइयो और रोकिए या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह। वो देखो ना, मैं लगा हाँ पहले आखन फिर वो साइयां रणसी करी रख चढ़िया है, दर तेरे ते मैं अड़ियां करते सही कदी अड़ियां तू कीती कोई नहीं, तू तो मांगता भी सरसरी बेयकीनी से करके कर हाँ अड़ी भला कदी कीती या कदी अड़ी, क्योंकि तेनों ये है वे उथों आपे बन जाएगा। अड़ी कर कदी नहीं जाना याद, नहीं जाना। वो भाई साथ देख लो, मानते ही नहीं उसको, आपके बिल्कुल साथ हैं। किसी ने सांप को उसका शरीक बना रखा है, कोई बंदर पूज रहा है, कोई हाथी पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। ओए उन्होंने देन दिया, तानू नहीं देगा, तानू नहीं देगा, उनको दे रहा है। हजरत जी, इतनी बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, उनको दे रहा है, तुम्हें नहीं देगा। तूने अड़ी की कभी नहीं, बता कब तूने अड़ी की? तू कभी ये मान रख के बैठा नहीं मेरे अल्लाह की बारगाह आज मैंने नहीं उठना कोई दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें बाल आना। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का असल में मफहूम है, ये ना समझना ये सूफी एवं थे, जो बड़ों बड़ों को नहीं आता वो उनको आता है, याद रखना। उसमें मियाँ साहब ने उस हदीस की तरफ इशारा किया जिसका मफहूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बच्चों की कुछ बातें बड़ी पसंद है। उन्होंने कहा कि ये है कि रो के अपने वालिदैन से अपनी नजायज बात भी मनवा लेते हैं। जो रो के नजायज मनवा सकते हैं तो तू रो के सही नहीं मनवा सकता है, तू रोया ही नहीं कभी। दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें बाल जाना, एक निक्की जी जिद कर बैठी मैं खाली नहीं जाना है, कर अड़ी कदी बह कदी मान करके कर हाँ कदी तू ही अड़ी नहीं बेटा, यही सीधा रास्ता है और ये ठीक रास्ता है। ये एक दिन ना वो लिखा है कि हलाकू बाजार आ गया, बड़ा सफाक आदमी था। उसने ना वो बाजार आके ना अपनी सिपा को हुक्म दिया, ज़ाहिर है गली थी बड़ी सी बाजार, उसने कहा उधर से भी सड़क बंद करो, उधर से भी करो। और जितने लोग इस वक्त बाजार में मौजूद हैं ना, बूढ़े हैं, बूढ़ियां हैं, जवान हैं, औरतें हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबको लाइन में खड़ा करके एक एक करके सबके सर उतार दो। वो खड़ा था, उसके सामने 3 लाइनें लगा दी गई हैं, एक एक करके ना सर उतरने शुरू हुए। वो लिखा जो पहली लाइन का सबसे आखिर वाला था ना, वो एक बुजुर्ग था, बाबा जी थे। जब उनकी बारी आने लगी ना, उनके साथ वाले को ले जाया गया सर उतारने के लिए, तो वो लाइन छोड़ के ना पिछली लाइन में चले गए। अब ये देख रहा था, वो लिखा ये मुस्कुराया, उसने कहा अच्छा बाबा एक नहीं भला किथे के नस लेना। दूसरी लाइन शुरू हुई, सर उतरने शुरू हुए एक 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 कर। जब बाबा जी के साथ वाले बंदे को ले जाया गया ना सर उतारने के लिए, बाबा जी दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में आ गए। उसने देख लिया, फिर मुस्कुराया, चल बाबा हुण वेखने हुण किथे जाना। वो तीसरी लाइन के सर उतरने शुरू हुए। अब सिर्फ बाबा ही रह गया। जब उसका सर उतारने लगे ना, इसने कहा ले क्या हो इधर इसको। तो बाबे को कहता है बाबा जब तू पहली लाइन छोड़ के दूसरी में गया था, मैंने तब भी तुझे देख लिया था, मैं अगर चाहता तो तेरा सर तब भी उतरवा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ भला कहाँ तक भागता है ये। फिर दूसरी लाइन में जब तेरी बारी आई तो दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी में चला गया। सर मैं तेरा तब भी उतरवा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ ये कहाँ तक भागता है। अब बता बाबा क्या करेगा? अब तो भागने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है। अब है को तुझे बचाने वाला? बचा सकता है तुझे कोई? तो अगर है तो पुकार उसको कि वो तुझे बचा ले। कौन बचाएगा तुझे? आए आए, वो खाली बाबा नहीं था, उस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया था। कुछ लोग उम्र के तो बाबे होते हैं, वो बाबे कोई नहीं होते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई बाबा जवानी में बाबा बना देता है, जो ऊपर से तो जवान होते हैं लेकिन अंदर से वो बाबे बन चुके होते हैं।
वो अंदर से भी बाबा था, वो बाहर से भी बाबा था। वो आगे से कहता है, ए मारने वाले, तू मुझे कहता है कि तुझे कौन बचाएगा, तो सुन फिर, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। वो लिखा उस वक्त ना घोड़े पे बैठे, उसके हाथ में लीमू था, वो अपने लीमू से ना खेल रहा था, अपने घोड़े पे बैठा बैठा। वो करता क्या था ना, लीमू को ऐसे फेंकता था, फिर ऐसे फेंकता था, फिर वो ऐसे लीमू फेंक रहा था। जब उसने कहा ना मेरा अल्लाह बचाएगा, उसको थोड़ा सा ना गुस्सा आया, उसको थोड़ा सा, उसने वो जो इधर से लीमू फेंका ना, गुस्से में लीमू थोड़ा आगे गया, तैश आ गया ना, ज्यादा जोर लग गया हाथ से, वो लीमू थोड़ा ना आगे गिरा। तो उसने वो लीमू पकड़ने के लिए ना, जब वो थोड़ा ऐसे हुआ ना, तो नीचे से घोड़े की रकाब भी खींची गई और घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। क्योंकि वो पहले ऐसे था, जब घोड़ा भागा वो जमीन पे गिर गया, घोड़ा पूरी शिद्दत से भागा, आगे पत्थरों का ढेर पड़ा था, लिखा है वो पत्थरों से टकरा के खुद चकनाचूर हो गया। बाबा वहां का वहीं खड़ा था। तू हर तो सही, तुझे खुद ही नहीं तेरे अल्लाह पे यकीन है, तू खुद बेयकीनी का शिकार है, तू खुद शक में है, पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ओए होगा क्यों नहीं होगा मियां, जब वो कह रहा है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। और फिर इस आयत का कमाल तर्जुमा मियां मोहम्मद बख्श साहब ने किया। अब फरमाते जेड़े लोग तवक्कुल वाले बिना मुशक्कत फल दे, हजरत है तवक्कुल ही कोई नहीं है, यकीन ही नहीं। याद रखो इस वक्त मुसलमान को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है ना, वो यकीन है बेटा। वो 313 थे, कुछ भी नहीं था, चंद तलवारें थी, चंद नेज़े थे, चंद घोड़े थे, रोजे से भी थे, लेकिन थे यकीन वाले। उन्होंने 1000 लोगों को शिकस्त दे दी। आज हमारे पास एटम बम है, फिर भी जलील हो रहे हैं। क्यों भला? एटम बम से नहीं कुछ भी होता, यकीन से होता है, यकीन से। और एक बार रो के कहते हैं कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? यकीन पैदा करो यार, अपने अल्लाह पे यकीन, अपने अल्लाह पे यकीन है, अपने अल्लाह पे तवक्कुल, अपने अल्लाह को ना तक के खाइए, बड़े तक के खा लीजिए। आ जाओ।